Hello students, how are you all? In previous video, I was telling you about the basic difference between non-living things and living things. Okay, I was telling you that there are some common features and some fundamental features by which we can easily separate non-living things from living things. Okay, but here we should also know that there are some common chemical matters that occurs in both living organisms एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, और हम सिंपली कह सकते हैं कि ये केमिकल मैटर्स जो होते हैं ये दोनों के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स में भी और लिविंग थिंग्स में भी कॉमन होते हैं. ठीक है, एंड दीज केमिकल मैटर्स आर केमिकल मैटर्स कार्बन, ऑक्सीजन, hydrogen and nitrogen. Okay, they are common in non-living things and living things. Okay, इनके अलावा कुछ और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो सेम होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर और लिविंग थिंग्स के अंदर. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि देयर आर सम फिजिकल लॉज लाइक मैग्नेटिज्म, radiation and gravitation. Okay, these physical laws also same in non-living things and living things. Okay, जो non-living things होती है जैसे स्टोन है, स्टोन को हम किसी हाइट से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो वो भी ग्रेविटेशन शो करेगा. ठीक है, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ऊपर से गिरता है नीचे तो वो भी क्या शो कर रहा है बेटा, ग्रेविटेशन शो कर रहा है. ओके, अब हम पढ़ेंगे आज कि देयर आर सम different kinds of characteristics, okay, that occurs only in living organisms. Okay, and these characteristics are absent in non-living things. तो हम कह सकते हैं कि on the basis of these characteristics we can easily separate living organisms from non-living things. Okay, first characteristics is cell organization. I have told you each living organism is made up of by cell. That's why we can say that cell is the structural and functional unit of the life. Okay, on the basis of the number of cell there are two kinds of living organisms, unicellular and multicellular. Okay, in case of unicellular living organisms their whole body is made up of by only single cell. Example amoeba, paramecium, plasmodium. Okay, इनकी पूरी बॉडी किससे बनी होती है बेटा, एक सेल से. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, स्टारफिश, ह्यूमन बीइंग्स. ओके, अब बात चल रही है कि इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर आर मेनी सेल्स. ओके, एंड दीज सेल्स बिलियन सेल्स होती हैं. Then these many cells, okay, form whole body. Okay, तो आपको ये पता है इस चीज का कि जो cells होती है बेटा, the group of dissimilar cells and similar cells form tissue. Okay, the group of cells, अब cells भी दो तरह के हो सकते हैं बेटा, या तो similar cell या dissimilar cell. ठीक है, the group of cells form tissue. Special kind of tissue consists special kind of cells. Okay, if you are talking about nervous tissue, then nervous tissue is made up of by nerve cell. If you are talking about muscular tissue, then muscular tissue is made up of by muscle cell. If you are talking about epithelium tissue, then epithelium tissue is made up of by epithelial cells. Okay, तो हर एक स्पेसिफिक टिश्यू कंसिस्ट स्पेसिफिक सेल्स. ओके, अब जो ये सेल्स हैं या तो ये सिमिलर हो सकती हैं या डिसिमिलर हो सकती हैं. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू. ओके, जो टिश्यू है बेटा, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स. There are two types of organs
external organs and internal organs. Okay, you can easily see external organs in the living organisms body. जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर आईज है, नोज है, ईयर है, they all are example of external organs. Okay, जो स्पेसिफिक टिश्यू रखते हैं. ठीक है बेटा. फिर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में आप जान चुके हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, दे आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लीवर, XYZ. ठीक है. अब क्या है कि जो ऑर्गन्स हैं, दोनों ऑर्गन्स एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स, ओके, कंबाइनली दे मेक ए सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ओके, and this organ system make whole body of living organisms. That's why we can say that the body organization of living organisms start from a cell. ठीक है. और जो लाइफ ओरिजिनेट होती है बेटा, वो भी एक सेल से होती है. आपको पता है ना कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फ्यूज होंगे और क्या बनता है, जाइगोट बनता है इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और जो जाइगोट है उससे ही लाइफ बनती है. ठीक है. जैसे हमारी बॉडी का जो ओरिजिन है किससे हुआ है, हमारी लाइफ का ओरिजिन एक जाइगोट से, एक सिंपल कंप्लीट एग सेल से. ठीक है. तो सेल ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ बाय सेल. ओके, बस यही आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं second characteristics of living organisms. Okay, and the second characteristics is definite shape and size. Okay, each living organism clear consists definite shape and size. हम बात करेंगे एक नॉन लिविंग थिंग्स की, और जैसे स्टोन है, ठीक है, स्टोन की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ना कोई साइज होता है. ठीक है. वी कैन इजीली ब्रोकन डाउन स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ओके. तो मैंने कि स्टोन की जो शेप थी, जो एक्चुअल शेप थी, उसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जैसे माइस है, इट हैज इट्स पर्टिकुलर शेप. ओके, जैसे एलिफेंट है, इट हैज इट्स डेफिनेट शेप. ओके. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपनी एक डेफिनेट शेप और साइज से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. ठीक है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है बेटा, तो उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है. ठीक है. अब इसी बेस पे क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स are known as morphous because they have definite shape. Okay, and non-living things are known as amorphous. Okay, here amorphous means formless. Okay, तो आप समझे इस चीज को. ठीक है. कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, दे आर नोन एज मॉर्फस बिकॉज दे हैव पर्टिकुलर शेप. ठीक है. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दे आर नोन एज अमॉर्फस बिकॉज दे आर नॉट हैविंग ए प्रॉपर शेप. ओके. फिर एक बात यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेल का भी अपनी एक्चुअल शेप होती है. ठीक है. जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है, अब हमारी जो आरबीसी है, इट इज राउंड ओवल शेप्ड. ओके. ठीक है. और जो नर्व सेल्स हैं, दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड ब्रांच सेल्स. ठीक है. तो जो सेल्स हैं, सेल्स भी क्या रखती हैं, प्रॉपर शेप रखती हैं हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. ओके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है बेटा. ग्रोथ जो होती है, ठीक है, इट इज शोन बाय बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ग्रोथ इज नॉट ए परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके.
बिकॉज ग्रोथ इज शोन बाई बोथ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस ये बेटा कि जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है बेटा, इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ओके, by the help of cell division new cells are formed, okay, and these new cells form tissue form organ form organ system and organ system make whole body। okay, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब जो छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर क्या चलेगा बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। अब स्मॉल चाइल्ड के अंदर जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो किससे हो रहा है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एज तक, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर। ये बात कर रहा हूं ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि एक पर्टिकुलर एज पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, लेकिन जो सेल रिपेयरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हम जो वर्क करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग वर्किंग टाइम आवर सेल्स आर डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, ओके। फिर उसके बाद चलता है जब रेस्टिंग पीरियड्स में होते हैं तो आवर सेल शो ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेल रिपेयरिंग प्रोसेस। बाय द हेल्प ऑफ सेल रिपेयरिंग प्रोसेस न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ओके, एंड आई थिंक सो दैट यू नो वेरी वेल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लॉ दिया था रुडोल्फ विर्चो ने कि जो सेल्स डेड हो जाती हैं, ठीक है, दे गिव्स राइज, ठीक है, वो जन्म देती है न्यू सेल्स को, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज को। और जो न्यू सेल्स बनती हैं वो किससे बनती है, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो बात है कि जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि जो ग्रोथ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। इंट्रिंसिक and another extrinsic, okay, intrinsic means inside the body, okay, growth occurs inside the body in case of higher living organisms, okay, in case of animals, ठीक है, और in case of plants, ठीक है, ग्रोथ तो होती है inside the body living organisms के केस में, but in case of non living organisms, ठीक है, growth occurs आउटसाइड दी बॉडी। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि हमारी बॉडी में तो सेल डिवीजन होता है जिससे ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे ये सैंड माउंट्स हैं, ठीक है, रेत का टीला, सैंड माउंट्स, ओके। अब इस रेत के टीले पर, ठीक है, बहुत सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दे डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइड, ओके, और जब बाहर से वो सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे उसके ऊपर फ्रॉम आउटसाइड, देन द साइज लेंथ ऑफ सैंड माउंट्स विल बी इंक्रीज। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। लेकिन जो ये ग्रोथ है, ये कौन सी ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बेटा दो तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है, और वो जो ग्रोथ है उसको मैं नाम दूंगा डिटरमिनेंट एंड indeterminate. Determinant means limited growth and indeterminate means unlimited growth. In case of animals, लिमिटेड ग्रोथ अकर्स. ओके, जैसे बताया था मैं आपको कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर क्या है बेटा, सेल्स डिवाइड हो रही हैं,
और आफ्टर डिवीजन टिश्यूज आर फॉर्म्ड, ऑर्गन्स बन रहे हैं, देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड एंड होल बॉडी। ठीक है, और पता है कि जब सेल ग्रोथ जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता है, देन बॉडी मास, बॉडी वेट, हाइट, they all are increased, okay, by the help of growth and development, okay. But in case of animals, this growth is limited, okay. This growth and development takes place at a particular stage, एक certain stage होती है जब तक growth and development चलता है, in case of animals, okay. But in case of plants, ये आप लिखेंगे यहाँ पर बेटा कि animals के केस में है ये limited growth, एग्जाम्पल एनिमल्स, और जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो किसमें होती है? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जैसे प्लांट्स को हम कट कर देते हैं ड्यूरिंग वेरी सीजन्स, ठीक है, उसके टिम्बर्स को, उसके ब्रांच को, ठीक है, तो जो प्लांट्स की जो सेल्स है जो डेड हो जाती है उनका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आपको पता है इस चीज का कि इन केस ऑफ प्लांट देयर इज वन स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It is called meristematic tissue, and this meristematic tissue is made up of meristematic cells. Okay, तो जैसे हमने प्लांट्स को कट कर दिया तो वहां पे सेल्स क्या होंगी? डेड होंगी। तो पता है मैंने आपको कि जब डेड हो जाती है सेल्स तब एक प्रोसेस चलता है दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, और इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन होगा तो न्यू सेल्स बनेंगी, टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है, और प्लांट्स पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से। लेकिन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इन केस ऑफ प्लांट्स वो क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो बता चुका हूं आपको मैं कि ग्रोथ ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी और लिविंग थिंग्स के अंदर भी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें तो ये होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बाहर से होती है। जैसे एक बताया भी एग्जांपल दिया आपको मैंने कि एक रॉक है, ठीक है, उस रॉक के ऊपर बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स या स्टोन पार्टिकल्स डिस्पोज हो रहे हैं, ठीक है, और जो रॉक है उसकी हाइट क्या है? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वो तो होगी बेटा आउटसाइड ग्रोथ। ठीक है, और लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर चलती है वो क्या होती है? इनसाइड ग्रोथ। ओके, नाउ we will study about the next characteristics of living organisms that is shown by only living organisms, and this characteristics is reproduction. Simply you should know that there are different kinds of biological process like reproduction, respiration, digestion, locomotion, movements. Okay, these all biological process are shown by living organisms. Okay, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं they do not show these kind of biological process. Okay, reproduction is a such type of a biological process that is shown by living organisms to produce new individual. Okay, अब हम बात करेंगे there are two types of reproduction. First, asexual reproduction, and second is sexual reproduction. पहले आप बेसिक डिफरेंस जाने बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction. ओके, इन केस ऑफ asexual reproduction पहले हम बात करते हैं बेटा asexual reproduction की। ठीक है, in case of asexual reproduction only single parental cell takes part to produce new individuals. Okay, there is no role of male and female gametes during asexual reproduction. ठीक है, और जो asexual reproduction होता है it is shown by lower animals. ठीक है, but higher animals show higher animals जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स पार्ट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये बताऊंगा आपको बाद में भी. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी टाइप्स होते हैं बेटा. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले अभी बाइनरी फिजिन, दैट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, बाइनरी फिजिन
नेम से आपको लग रहा होगा कि एक जो पेरेंटल सेल है इट स्प्लिट्स और ब्रेक्स और डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, बिकॉज हियर बाई मीन्स टू, ठीक है। और फिजिन मीन्स क्या होता है? ब्रेक्स होना, टूटना, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए कि बाइनरी फिजिन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज शोन बाई amoeba, proteus named aquatic animals, okay। जो अमीबा बेटा इरेगुलर शेप्ड एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इट हैज ओनली सिंगल सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द वाटर कंसंट्रेशन is increased in the body of amoeba, then its body splits into two new daughter cells, okay। This type of cell division, ठीक है, लीड्स बाइनरी फिजिन। अब बाइनरी फिजिन क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कि हालांकि अमीबा की जो पेरेंटल सेल थी इट डिवाइड्स, इट शो माइटोटिक सेल डिवीजन, जो सेम सेल डिवीजन, इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर, ठीक है। इसकी एक जो पेरेंटल बॉडी थी वो कब ब्रेक हुई? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज इट्स बॉडी, ओके। तो उसकी बॉडी टूट गई, ठीक है। जब टूटी है तो इस एक पेरेंटल अमीबा से कितनी अमीबा बन गई है? 2 बन गई, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन एक टाइप है बेटा asexual reproduction, that is called binary fission. But here you should know that in case of binary fission, two process takes place. First, karyokinesis. Karyokinesis means nucleus division. जो अमीबा का न्यूक्लियस है बेटा वो क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन, ठीक है, जो सेल डिवाइड होती है तो उस समय को क्या होता है बेटा? पहले तो क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है। ये एक बड़ा प्रोसेस है बेटा सेल डिवीजन का, ठीक है। इसमें स्टेज भी होती है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, और लास्ट में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है ना, ये भी एक आपका एक टाइप है, मतलब सेल डिवीजन का, ठीक है, जो प्रोफेज स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। ये चैप्टर 10 के अंदर पढ़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है, कि भाई सेल किस तरह डिवाइड होती है, ठीक है। लेकिन अभी आप समझे कि इन केस ऑफ बाइनरी फिजिन, ठीक है, 2 प्रोसेस टेक्स प्लेस, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब आप देख लें कि इस अमीबा के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जैसे ये है बेटा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये जो सिंगल न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या होगा? ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसमें क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। और क्या बन गई है? 2 न्यू डॉटर सेल्स। आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, these 2 new daughter cells also divides and make another daughter cell. This type of binary fission process is known as mitotic cell division. लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो binary fission है it is type of asexual reproduction that is shown by amoeba. Okay? अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन फिजिन की, ठीक है। एक टाइप है ट्रांजिशन फिजिन। इट इज अनदर टाइप ऑफ asexual reproduction that is shown by paramecium named aquatic organisms, okay। It is a structure of paramecium, slipper shaped structure, okay। It is called bullate, and on cell membrane of paramecium there are many thin thread like structures. These structures are known as cilia. By the help of cilia, paramecium show locomotion and capture food particles, okay।
अब इसमें क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ पैरामीशियम ट्रांजिशन फिजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, जो इसकी पेरेंटल बॉडी होती है इट स्प्लिट्स फ्रॉम सेंटर, ठीक है, बीच में जिसकी बॉडी कट हो जाती है, ठीक है, और जब उसकी बॉडी कट हो जाएगी, डिवाइड होगी, देन ईच ब्रेकेबल पार्ट 1 or 2, ईच ब्रेकेबल पार्ट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। ओके, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, लीड्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरह सेल डिवाइड हुई है, लेकिन किसको लीड कर रहा है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, ये आप देख लें। फिर एक टाइप है मल्टीपल फिजिंग, ठीक है, मल्टीपल फिजिंग के आपको नाम से लगा होगा कि जो एक सेल होती है बेटा इट डिवाइड्स मैनी टाइम्स। जैसे हम पढ़ रहे थे बाइनरी फिजिंग के बारे में, तो बाइनरी फिजिंग में जो सिंगल सेल थी इट डिवाइड्स इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स, बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिजिंग ए सिंगल सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स, ओके, एंड फॉर्म मल्टीपल इंडिविजुअल्स। ओके, जैसे एक एग्जांपल है मल्टीपल फिजिंग के केस में, मल्टीपल फिजिंग इज शोन बाय प्लाज्मोडियम vivax named protozoan that cause malarial disease। नॉर्मल आप ध्यान दें इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, ठीक है, इसकी बेटा एक स्टेज होती है इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है, एंड दिस इन्फेक्शियस स्टेज इज नोन एज sporozoite, okay, and it is sickle shape, okay. This sporozoites enter into healthy person's body when female anopheles mosquito bites, okay, and by the help of blood circulation this sporozoites enter into the liver cell of humans, okay। अब क्या होगा बेटा, इन लिवर आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट सिकल शेप ऑफ स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट्स इनटू राउंड शेप। नाउ दिस स्टेज इज नोन एज साइजोन। क्या कहलाएगी बेटा, साइजोन, ठीक है। और आप देखें कि साइजोन के अंदर कितने न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब चलेगा मल्टीपल फिजिंग, ठीक है, और ड्यूरिंग मल्टीपल फिजिंग आई हैव टोल्ड यू सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड्स मैनी टाइम्स, ठीक है, कि जो साइजोन बना था, ठीक है, इसका जो सिंगल न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स बेटा मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियाई, ओके। व्हेन each nuclei is surrounded by the help of cytoplasm, then they are known as spores, ठीक है। जब न्यूक्लियस घिर जाती है किससे, साइटोप्लाज्म से, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्पोर बोलेंगे, ठीक है। एंड दीज ऑल स्पोर्स आर सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड सिस्ट, ओके। अब क्या होगा कि सिस्ट जब ब्रेक होगी, ठीक है, then each spores comes out and produces new individual. This type of asexual reproduction is known as multiple fission. सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि जो एक सेल थी, उस एक सेल का जो न्यूक्लियस था it divides multiple times and form many nuclei. When each nuclei is surrounded by the help of cytoplasm, then this structure will be known as spore. तो बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। And these whole spores are surrounded by the help of a protective layer that is called cyst. When cyst breaks, जब ये टूटती है, then each spore comes out and each spore produces new individual, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है asexual रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ऐसे काफी टाइप्स है बेटा, ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजिंग, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल फिजिन है इट इज शोन बाय यूग्लिना नेम्ड एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, कि जो उसकी बॉडी होती है
ठीक है, वो ऊपर से कट होगी, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन होता है उसमें, ठीक है, और ऊपर से उसकी बॉडी कट हो जाएगी, और जब उसकी बॉडी कट होगी तो एक पेरेंटल बॉडी से 2 न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ तो कट था यूग्लिना के अंदर ऊपर से, और बताया भी जस्ट आपको मैंने पैरामीशियम के केस में, ठीक है, कि इसकी जो बॉडी होती है वो बीच में से कट होगी, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिजिन, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation is shown by a fungi that is called Rhizopus, and another name of this fungi is braid mold plant. Okay, in lower classes I think so that you have learned about this fungi, ठीक है। और आप सुनोगे जैसे कोई एक ब्रेड का पीस है या चपाती है, उसमें जैसे आप मोइस्ट उसको थोड़ा गीला करके, ठीक है, मोइस्ट पीस ब्रेड को अगर आप कहीं और रख देते हैं, ठीक है, एक किसी आपने कहीं एक जगह रख दिया, ठीक है, उसको आपने ऑब्जर्व किया आफ्टर 2 or 3 days, ठीक है, देन यू विल ऑब्जर्व ब्लैक पैचेस ऑन द पीस ऑफ ब्रेड और चपाती। ओके, तो जो ब्लैक जो पैचेस हैं बेटा वो किसके हैं? राइजोपस फंगी के, ठीक है। अब जो राइजोपस फंगी है, इट शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो राइजोपस फंगी का उसकी शेप है इस तरह, ठीक है, यहां पर आप ध्यान दें, स्पोरेंजियम वेसिकल्स, स्टॉक एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड हाइफा, ठीक है, हाइफा, स्टॉक एंड स्पोरेंजियम वेसिकल्स, ठीक है। अभी क्या है बेटा, जो ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम वेसिकल्स, इट हैज मैनी स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स हैं, ठीक है। When sporangium vesicles breaks, then spores comes out, ठीक है। और जहां पर ये स्पोर्स गिरते हैं बेटा, they develops into new individual, okay। This type of asexual reproduction is known as spore formation। और आपको जानना चाहिए बेटा कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आर नोन एज asexual bodies, ठीक है। जो स्पोर्स है वो क्या कहलाते हैं? एसेक्सुअल बॉडीज, ठीक है। और आपको ये भी जानना है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स दैट टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजियम, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स जो कहां पर हो रही है? स्पोरेंजियम के अंदर, इट इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और स्पोर्स क्या है? एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं, ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। जब स्पोरेंजियम वेसिकल्स ब्रेक होगी तो स्पोर्स बाहर निकल के आते हैं, ठीक है, और हर एक स्पोर्स क्या बनाते हैं? न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन और सेगमेंटेशन, इसको आप पार्टीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे एक ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा हैज फ्लैट बॉडी, ओके। व्हेन स्पायरोगायरा फ्लैट बॉडी divides into 2 or 3 parts, okay, then each breakable part produces new individual, okay, and this type of asexual reproduction is known as fragmentation। समझे आप इस चीज को, ठीक है, कि जो एक पेरेंटल बॉडी थी, फ्लैट बॉडी, इसकी स्पायरोगायरा की, ठीक है, अब वो क्या बेटा डिवाइड हुई है, ठीक है, और डिवाइड होने से 1 2 3 बहुत सारे, मतलब या तो ना ज्यादा, मतलब 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, ठीक है, वो बन जाता है, ठीक है, आफ्टर ब्रेक।
स्पायरोगायरा, ठीक है। और जो ये ब्रेकेबल पार्ट्स हैं दे प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। और ये कहलाता है बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रीजनरेशन की, ठीक है। रीजनरेशन देखो रीजनरेशन में क्या होती है, जैसे कोई बॉडी का जो पार्ट्स होता है ना, ठीक है, अगर वो टूट जाता है तो ऑन द प्लेस ऑफ दिस ब्रेकेबल पार्ट ऑफ द बॉडी न्यू पार्ट इज डेवलप्ड। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश हैज 5 आर्म्स, ठीक है। अगर उस 5 आर्म्स में से कोई भी आर्म एक कट हो जाती है, ठीक है, तो ऑन द प्लेस ऑफ दिस कट आर्म्स न्यू आर्म डेवलप्ड, ओके। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस हैज 8 लेग्स, ठीक है। अगर कोई एक लेग कट हो जाती है तो ऑन द प्लेस ऑफ दिस कट लेग न्यू लेग डेवलप्स, ठीक है। तो वो तो रीजनरेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। और एक आप इतना ध्यान रखें, जो सिंपल ऑर्गन्स होते हैं दे शो रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम शो नहीं करते हैं रीजनरेशन की। हमारी उंगली कट जाए तो उसी जगह पे कोई दूसरी उंगली आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज को। हाँ, जैसे माइस की टेल है, लिजार्ड की टेल है, वो शो करते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे लिजार्ड की टेल कट हो जाती है तो द प्लेस ऑफ दिस कट लिजार्ड टेल न्यू टेल डेवलप्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज को। लेकिन यहां पर हमें पढ़ना है कि रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज शोन बाय प्लेनेरिया नेम्ड फ्लैटवर्म्स, ओके। ये फ्लैटवर्म्स है प्लेनेरिया, ये शो करता है बेटा रीजनरेशन, ठीक है। इसमें क्या है इस प्रोसेस के अंदर कि जो इसकी बॉडी है फ्लैटवर्म्स की, ठीक है, इट्स बॉडी डिवाइड्स, सिंगल बॉडी, ना सिंगल पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 और 3 पार्ट्स। जैसे इसकी बॉडी टूट गई 3 पार्ट्स में, 1, 2 और 3। ईच पार्ट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल, जैसे हम यहां देख रहे हैं, तो ये भी एक न्यू इंडिविजुअल्स बनाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रीजनरेशन प्रोसेस। दिस ऑल्सो मेक न्यू इंडिविजुअल्स, सेकंड ब्रेकेबल पार्ट, ओके। एंड थर्ड पार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ओके। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बडिंग प्रोसेस की, ठीक है। बडिंग प्रोसेस भी 2 तरह की होती है, एंडो बडिंग और एक्सो बडिंग, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं एक्सो बडिंग के बारे में, ठीक है। और अभी बताया जस्ट आपको मैंने कि जो बडिंग है, जो बर्ड है, बर्ड मीन्स क्या है, एसेक्सुअल बॉडी, ठीक है, यानी, और बडिंग मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स ऑन द पेरेंटल बॉडी, ठीक है, कि बर्ड्स का बनना ऑन द पेरेंटल बॉडी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर बेटा एक्वाटिक एनिमल्स होता है, ठीक है। मेन आपको भी ये समझना है, ठीक है। दे आर पेडल्स, दे आर बर्ड्स, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखें, ये टेंटिकल्स है बेटा। टेंटिकल्स एक तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं इसकी लोकोमोशन में, दूसरा दे कैप्चर फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये माउथ है, ये बर्ड्स हैं और ये पेडल्स हैं, ठीक है। अब जो बर्ड्स है ना बेटा, एसेक्सुअल बॉडीज होती है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, व्हेन each birds separate from its parental body, जैसा ये है, ये मैच्योर हो गई है and it separates from parental body, then each bird produces new individual, okay. This type of asexual reproduction asexual reproduction is known as exobudding, okay. और अब नेक्स्ट जो टाइप्स है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। थैंक यू।